Good morning, students. Welcome back to chemistry classroom once again. Today I will start from the greenhouse effect. Look at your book. A greenhouse is actually a glass house inside which we can grow plants. So greenhouse का मतलब क्या है? Normally greenhouse is a glass house जिसके अंदर हम लोग प्लांट को ग्रो करवाते हैं. That is greenhouse. During the day, the sun rays enter the glass house and keep the plants warm. But the glass traps a part of the heat of the sun rays and keeps on radiating it back even during the night. मतलब दो दिनों के टाइम नॉर्मली इन द डे टाइम ग्लास ट्रैप द some part of sun rays and keeps on radiating it back even during the night. रातों के टाइम नॉर्मली ये रेज को दोबारा वापस भेज देते हैं एटमोस्फियर में, कीपिंग द प्लांट्स वार्म. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द Earth's atmosphere plays the same role as the glass in a greenhouse. The carbon dioxide traps the heat of the sun rays and keeps radiating it back so that the warmth of the earth is retained. मतलब नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्ट एज अ रेडिएटर. मतलब ये दोपहर के टाइम दिनों के टाइम सनराइज को ट्रैप करता है. एट नाइट अगेन इट कीप द रेडिएटिंग द sun rays back into the atmosphere by which earth retained its warmth. The sun rays hit the earth directly also, but a large portion of the rays are reflected back. So without the warmth provided by carbon dioxide of the atmosphere, the earth would have been much colder during the nights. तो नॉर्मली अगर कार्बन डाइऑक्साइड रातों के टाइम ये रेस को दोबारा एटमोस्फियर में वापस नहीं भेजते तो नॉर्मली रातों के टाइम नॉर्मली हम लोग का अर्थ बहुत ज्यादा ही ठंडा हो जाता. A gas that traps heat in the environment and keeps the surroundings warm is known as greenhouse gas. So normally which gas basically help to trap the heat in the environment and keeps the surroundings warm, that is greenhouse gas. And the whole effect also known as greenhouse effect. And इस effect को हम लोग क्या बोलेंगे? Greenhouse effect. So student, you have to learn two words from here. First of all is greenhouse gas, adding greenhouse effect. So which gas actually help to keep the warmth of the earth and keep the surroundings warm is known as greenhouse gas. Again, the effect is also known as greenhouse effect. Thus, carbon dioxide is a greenhouse gas and other such gases in our environment are mainly methane and fluorocarbon. ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है नॉर्मली मीथेन गैस एमिटेड बाय द कैटल डंग. मतलब हम लोग जो डोमेस्टिक एनिमल को घर में पालते हैं उन लोगों का डांग से काउ डांग हो या गोट डांग हो जो भी हो उसके मीथेन गैस मिलता है. सेम है फ्लोरोकार्बोन्स यूज्ड एज द कूलेंट्स इन द फ्रिजेस एंड एयर कंडीशनर्स. तो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में नॉर्मली जो कूलेंट गैस हिसाब से यूज किया जाता है दैट इज द फ्लोरोफ्लोरोकार्बन. नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग. What will happen if the concentration of carbon dioxide increases in our environment? क्या होगा if the level of carbon dioxide increased in our environment? If this happens, the average temperature of the earth will increase. So if the level of carbon dioxide will increase, normally the average temperature of the earth will increase. The polar ice caps and the glaciers will melt. नॉर्मली पोलर आइस कैप उसके साथ ग्लेशियर जो है वो भी गलने लगेगा. The sea level will be raised, submerging several islands and coastal cities, and there will be drastic climatic changes. So if day by day the level of carbon dioxide increase, same the average temperature of the earth will increase. Same way polar ice cap and glaciers will melt. Sea level will be increased. That's why it will be raised and submerging the several islands and coastal cities, and it will be changed in the drastic climatic changes.
All this will happen due to a rise in the Earth's average temperature due to global warming. Afforestation can bring down the changes of global warming by using up the increased carbon dioxide in photosynthesis. So, what is afforestation? Afforestation is a process by which basically we plant more trees to decrease the level of carbon dioxide by using carbon dioxide in photosynthesis process. But the opposite activity, deforestation, is on the increase due to the increased population. तो नॉर्मली हम लोग बढ़ता हुआ पॉपुलेशन के द्वारा डिफॉरेस्टेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है. With increasing deforestation as well as industrialization, the proportion of carbon dioxide in our environment has increased. So as because the industrialization दिन ब दिन बढ़ रहा है population के द्वारा, तो as because same way the level of carbon dioxide will increase in the atmosphere, I mean environment, and we are already facing the dangers of global warming. The world community is making all about efforts to bring the proportion of carbon dioxide drawn to the permissible levels. So पूरा इन मतलब वर्ल्ड का जो साइंटिस्ट है वो लोग कोशिश कर रहा है कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है प्रोपोर्शन जो है वो मतलब परमिसेबल लेवल में रहे. नेक्स्ट, एक्शन ऑन नेचुरल वाटर. Natural water is slightly acidic to slightly alkaline. मतलब इसका pH वैल्यू है 6.8 से 8.5. ये ब्रैकेट का जो pH वैल्यू दिया हुआ है ये बहुत अच्छे से याद रखना. So natural water is slightly acidic to slightly alkaline. pH is measured of acidic or alkaline nature of a dilute solution. तो नॉर्मली हम लोग कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो पीएच बैलेंस है उसको हम पीएच के हिसाब से मापते हैं. इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर और पीएच पेपर. सो यहाँ से दो चीज याद रखना है. नेचुरल वाटर जो है इसका पीएच वैल्यू कितना है और ये हम कैसे मापेंगे विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर और पीएच पेपर. सो नेचुरल वाटर इज आइदर स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली अल्कलाइन बिकॉज इट्स वैल्यू इज 6.5 फ्रॉम 8.5. क्योंकि 7 है न्यूट्रल, 7 के नीचे होगा तो एसिडिक होगा और 7 के ऊपर जितना जाएंगे उतना ही होगा बेसिक, आई मीन अल्कलाइन. प्योर वाटर इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन बिकॉज इट्स pH वैल्यू इज 7.0. Acidic solution have pH less than 7. Similarly, alkaline solution is pH greater than 7. So you know that on dissolving in water, carbon dioxide forms a weak acid that is carbonic acid H2CO3. अगर नॉर्मली पानी के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करेंगे, दे कंबाइन टुगेदर टू फ्यूज फॉर्म H2CO3 that is carbonic acid. So the gas tends to bring down the pH of water that is open to the atmosphere. नॉर्मली ये फॉर्म होने के बाद ही तुरंत पानी का डाइल्यूट सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा उसका पीएच लेवल कम हो जाएगा. फॉर ड्रिंकिंग पर्पस स्लाइटली एसिडिक वाटर इज अ बेटर देन एल्कलाइन वाटर. तो ड्रिंकिंग पर्पस के हिसाब के हम लोग नॉर्मली एसिडिक वाटर पीना अच्छा है एल्कलाइन वाटर से. एसिडिक वाटर दैट इज पीएच वैल्यू इज 6.5 इज सॉफ्ट एंड पैलेटेबल, बट एल्कलाइन वाटर पीएच जिसका 8 इज हार्ड एंड अनपैलेटेबल, मतलब वो अनडाइजेस्टेड हो जाएगा अगर हम लोग बेसिक वाटर पियेंगे तो दैट इज नॉट फिट फॉर आवर हेल्थ. ऑल्सो pH inside is a digestive system is acidic because our digestive system is acidic in nature. On the other hand, marine organisms thrive better in alkaline water than in acidic water. And it has been found that the increasing proportion of dissolving carbon dioxide is lowering the pH of seawater. तो नॉर्मली सी वाटर जो है ऑन द अदर हैंड मेरिंग ऑर्गेनिज्म थ्राइव बेटर इन अल्कलाइन वाटर देन इन एसिडिक वाटर. मेरिन वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है ये बेसिक वाटर में ही बहुत अच्छा से जी लेता है, मगर दिन ब दिन क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से ये जब पानी में मिल जाता है डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिन ब दिन इंक्रीज होने की वजह से ये नॉर्मली सी वाटर जो है इट लॉसेस इट्स अल्कलाइन नेचर एंड टर्न इनटू एसिडिक नेचर. This is posing a threat to marine life.
इस दौरान मेरीन लाइफ बहुत डेंजर में है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is used in the industry for the manufacture of metal carbonates and hydrogen carbonates. सोडा एस, ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सोडा एस जो है इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। पोटेशियम कार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो नॉर्मली इसका केमिकल नेम एज वेल एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू शुड लर्न। सो सोडा एश दैट इज सोडियम कार्बोनेट। जब ये सोडा ऐश मतलब सोडियम कार्बोनेट ये जो सॉल्ट है जब हाइड्रेटेड हो जाएगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल अगर इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। सेम है पोटेशियम कार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट यूरिया, CONH2 होल ट्वाइज, इसको बोला जाता है होल ट्वाइज, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है कंपाउंड के देखो पूरा ब्रैकेट देके बाहर में 2 मॉलिक्यूल लिखा है मतलब दैट्स वाई इट इज होल ट्वाइज। यूरिया CONH2 होल ट्वाइज एंड इथानॉल C2H5OH। It is used in a fire extinguishers. It is extensively used for making soda, water and a fizzy drinks. Normally हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, that is rich with carbon dioxide. Next, in welding, carbon dioxide is used in order to prevent the oxidation of the metal by air. In welding purpose पे carbon dioxide use gas मतलब carbon dioxide gas is used in order to prevent the oxidation of the metal in by air. मतलब मेटल का जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाया जाता है इस वेल्डिंग काम में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज द कूलेंट एंड द डिफेक्टिंग द सम स्मोक इन प्लेस मूवीज एंड सो ऑन। तो एज ए बिकॉज ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है और उसी के हिसाब से डिपिक्टिंग द स्मोक इन प्लेस, नॉर्मली हम लोग प्लेस हो मूवीज हो थिएटर जो भी हो नॉर्मली हम लोग जो धुआं वाले कुछ सीन कहते हैं उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। Next, how a fire extinguisher works. Planger, H2SO4, sodium carbonate solution and nozzle. मतलब यहां से निकलने के बाद ये नोजल से हम लोग स्प्रे करते हैं। देखो, कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर प्रोड्यूस carbon dioxide by the action of sulfuric acid on a solution of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. तो नॉर्मली फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसके अंदर क्या क्या सॉल्यूशन रहता है? सोडियम कार्बोनेट एंड H2SO4 दैट प्रोड्यूस another salt sodium sulfate plus water plus carbon dioxide. सेम है और सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक मतलब H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद फॉर्म करता है सोडियम सल्फेट H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्लेस्ड इन एन फायर एक्सटिंग्विशर। सो तुम लोगों को ये बात याद रखना है, ये तीनों लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना। ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्लेस्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज another H2SO4 to another salt with hydrogen with sulfuric acid. These are the basic components of a fire extinguisher. A sealed bottle containing a sulfuric acid is also placed there. In case of fire, the acid bottle is broken by the striking the plunger against a hard surface. The acid reacts with the sodium carbonate और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सो नॉर्मली ये गैस जार के अंदर क्या रहता है? आइदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। जब नॉर्मली फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये प्रेशर देने के बाद ये गैस जार में जो H2SO4 है ये टूट जाने के बाद H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के बाद ये नॉर्मली ये नोजल से बाहर निकल के आता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर।
A mixture of water and carbon dioxide gases out, which is direct towards the burning object. Normally जो burning object के ऊपर throw कर रहा है. Carbon dioxide being heavier than air surrounds the burning object and cuts off the supply of air. As because carbon dioxide is heavier than air, that's why carbon dioxide जब हम लोग स्प्रे करेंगे ये नॉर्मली बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर बना देता है. दैट्स वाई ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाने के बाद एज द रिजल्ट द फायर इज पुट आउट. सो इट इज द बेसिक सीक्वेंस. क्या ये ग्लेशियर के अंदर क्या होगा, आइदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ. रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो मतलब मिक्सचर वो फॉर्म करेगा, ये नोजल्स के द्वारा हम लोग बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रे करेंगे. सो एज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन एयर, दैट्स वाई ये बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, जिसके द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा उसको. इस दौरान क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा. सो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न ये 3 लाइन. A solution of sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate is placed in fire extinguisher with sulfuric acid. और कुछ नहीं. The reaction you can learn. So student, I hope all of you understood what I have discussed in this video. So for today, up to this portion.